Hello students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today in this lecture, we will discuss some questions, some concepts regarding the three-dimensional geometry and the NCERT 11.1 exercise. Okay. So in this in this exercise, we will discuss and we will solve some questions regarding direction ratios and direction cosines. So, as I remember that in the last lecture, I had discussed about the direction ratios and the direction cosines. Okay. तो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस ये सब क्या होता है वी नो दैट वेरी वेल नो डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या होता है द डिफरेंसेस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1 and the direction cosines means one particular line makes some angles with the x-axis, y-axis and z-axis respectively, and the cosine value of that angles are called direction cosines of that particular line. Okay, so if you know the angles of inclination of a particular line with the x-axis, y-axis and z-axis respectively, then you can easily find the direction cosines of that particular line. ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस that was discussed also. So just those who have not viewed this lecture yet, just try to view these lectures first, and after that you should join this lecture as well. And if you like my videos, then please so thank you very much. Let's start our first lecture. Okay, let's start our today's lecture. Look, NCERT 11.1 exercise question number 1. If a line makes an angle, if a line, क्वेश्चन क्या है, if a line makes an angle, एक साथ में देखो 11.1 एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चंस है मैं एक साथ एक ही मतलब स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पर दे दिया स्क्रीन के ऊपर. जस्ट यू कैन सी द क्वेश्चंस, ओके, जस्ट ऑन द स्क्रीन. And I think you have NCERT book also. NCERT book is the basic book and the textbook, I think. So all of you have this NCERT book. So just I will I will share the actually these questions, all the questions on the screen. You can see the screen. Okay. Now, question number 1. If a line makes 90 degree, 135 degree and 45 degree with the x-axis, y-axis and z-axis respectively, find its direction cosines. That means, as I told you, if a particular line makes some angles with the x-axis, y-axis and z-axis, okay, the cosine value of that angles are called the direction cosines. ठीक है, तो यहाँ पर लिखो here a line makes the angles क्या क्या है, 90 degree, 135 degree, 90 degree, 135 degree, 45 degree. ठीक है, so L equals to cos alpha, that means cos 90 degree. ठीक है, M equals to cos beta, that means cos 135 degree. ठीक है, N equals to cos gamma equals to cos 45 degree. ठीक है, अब तीनों का वैल्यूज cos 90, that means what, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है. Cos 135, we don't know this value 135 degree directly, just we should use this complementary and the supplementary part. Okay,
So 180 minus 45, that is it is the case of the second quadrant. In second quadrant, cosine value is negative. That means minus cos 45. That means minus 1 by root 2. And cos 45, that means 1 by root 2 only. Okay. So this, that means the direction cosines L equals to 0, M equals to minus 1 by root 2, and N equals to 1 by root 2. These are all the direction cosines of this particular line. ठीक है? अब next question number 2. ठीक है? Find the direction cosines of a line makes equal angles with the coordinate axis. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. Find the direction cosines of a line makes equal angles with the coordinates. That means we don't know what is the angle here. Okay, that means यहाँ पर angle of inclinations of a particular line with the coordinate axis. That means equal angle, but we don't know the angle. No, so let us consider the angle as alpha. Okay, तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं. Let question number 2. ठीक है, question number 2. Let angle of inclination, let angle of inclinations with coordinate axis are alpha comma alpha. ओके, सेम एंगल्स बनाया गया है ना, तो अल्फा 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 ही होता है. तो दैट मींस एल का वैल्यू भी cos अल्फा, एम का वैल्यू भी cos अल्फा और एन का वैल्यू भी cos अल्फा. ठीक है ना. सो एल इक्वल्स टू cos स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कहां से आ गया, स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, L equals to cos alpha, M equals to cos alpha, क्योंकि तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाया गया है ना, तो इक्वल एंगल मैंने अल्फा ले लिया, और N equals to भी cos alpha होगा. As you all know, or we know that L square plus M square plus N square, as I told you, this structure is the most important structure of three-dimensional geometry. Okay, so this formula is very important. So L square plus M square plus N square ना, तो यहाँ पर cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equals to 1. That means 3 cos square alpha equals to 1. ठीक है, तो यहाँ पर cos square alpha equals to 1 by 3. That means यहाँ पर cos alpha equals to 1 by root 3. ठीक है, cos alpha means क्या होगा, 1 by root 3. तो यहाँ पर क्या बोला गया था, find the direction cosines. That means यहाँ पर cos alpha का वैल्यू 1 by root 3 मिला. That means cos alpha तो यहाँ पर L M N तीनों का वैल्यू है. सो यहाँ पर L equals to M equals to N, ये तीनों का वैल्यू 1 by root 3 होगा. ठीक है, ठीक है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन रेशियोज. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, -12, -4, what are its direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा. मैंने एक चीज, एक कॉन्सेप्ट
लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन हो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन हो डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक रिलेशन मैंने कराया था, अभी हम लोग फिर से ये थोड़ा रिमाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डायरेक्शन रेशियोस गिवन है, देखो -18, 12, -4। तो यहां पर देखो गिवन डायरेक्शन ratios -18, 12, -4. As I told you, the direction ratios used to be denoted by A, B, C. That means A equals to -18, B equals to 12, and C equals to -4. अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, we know that, अब क्या जानते हैं, L equals to A by root over S square plus B square plus C square, ये तो हम लोग जानते हैं, मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू पता है, just put the values of ABC, you will get the value of L. So that means you are getting the value of L once, then I think you are getting the direction cosines of that particular line. ठीक है, तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या है, -18 divided by -18 whole square, then 12 whole square and -4 whole square. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जितना होगा उतना ही तुम लिख लो। यहाँ पर क्या होगा, -18 बाई और 18 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 324, 144 और इधर 16। ठीक है, अच्छा 144 और 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 160, ठीक है ना, 160 और इधर 324, दैट मींस 484, ठीक है ना, 160, हाँ 484, दैट मींस -18 बाय 484। अच्छा 18 स्क्वायर अगर यहाँ पर 324 होता है, 18, 19, 20, 22, 22 स्क्वायर रूट ऑफ 484 आई थिंक -18 बाई 22 होगा। ठीक है, सिमिलरली m इक्वल्स टू b बाई रूट ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला डिस्कस किया था हम लोगों ने। b के जगह तुम 12 बाई नीचे ऑलरेडी मैंने वैल्यू निकाल के रखा है, देखो n इक्वल्स टू c बाई रूट ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, so that means -4 by 22। तो यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 11, ये 6, ये 11, ये 9, ये 11, that means -9 by 11, 6 by 11, 2 by 11, that means these are all the direction cosines of this line। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, एंड देन हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, जस्ट लाइक दैट, हियर इट इज योर प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें हम लोग यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3 पॉइंट दिया है एंड यू नीड टू चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर दिखाने के लिए तो देखो प्रोसेस तो बहुत सारा है। In class 10 I think you had done this type of questions, and you know very well how can you prove this, how can you verify these 3 points are lying on the straight line, that means lying on the same straight line, and that's why they are collinear. You can find the triangle areas and the triangle area is 0, then I think these 3 points are collinear. Is the process, one process, and after that, after finding the length, okay, length निकालो। यहाँ पर just 3 points A B C, 3 point है, just you can find the length of AB and then BC and then AC।
If the sum of two sides equals to one particular side, then it is the collinearity property. Okay, so these two properties are from the junior classes, class 11 and class 10, but in class 12th, in three-dimensional geometry, you have another process, and that is by using the direction ratios. डायरेक्शन रेशियोज यूज करके हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो गिवन पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन देखो और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो लिखो। गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स 2,3,4, 2,3,4, फिर उसके बाद -1, -2, देन 1, 5,8,7, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट को यूज करके तुम्हें क्या कोलिनियर दिखाना है, ठीक है। नाउ इसको एक काम कर दो, उसको ए पॉइंट नाम दे दो, उसको बी दे दो और उसको सी दे दो। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ये जो ए बी लाइन है ना, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा वो निकालो, ये ए बी लाइन। So just if you know the points coordinates, then you can find the direction ratios. x2 minus x1, y2 minus y1, that means यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 -3 होगा, फिर -2 -3 -5, 1 -4, that is -3. Direction ratios of BC, ठीक है। BC का डायरेक्शन रेशियो देखो तो क्या होगा, BC का डायरेक्शन रेशियो देखो 5 - 1, दैट इज ये 5 माइनस ऑफ -1, दैट इज 6, ठीक है। फिर 8 माइनस ऑफ -2, दैट इज 16, सॉरी 10 क्या होगा, 8 माइनस ऑफ -2, दैट इज 10, ठीक है। और 7 - 1, दैट इज 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया है क्या, ये देखो ये डायरेक्शन रेशियोज जो है प्रोपोर्शनेट है ना, देखो तो -3/6 दोनों का डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं प्रोपोर्शनेट करूं, देखो तो -5/10 और इधर -3/6, तीनों का आंसर देखो -½ -½ आ रहा है। दैट मीन्स दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज they are proportionate to each other. So what does it indicate? This thing indicates that these two lines are parallel lines. These two lines are parallel lines. Okay, just in class 10, oh sorry, in class 11, you have got this concept of parallel lines property. If the slopes of the two lines are equal, then these two lines are parallel. Okay, so according to these three-dimensional concepts and this direction ratio concepts, if the direction ratios are same or proportionate, then these two lines are parallel. So यहाँ पर here direction ratios are proportionate, ठीक है, proportionate. So AB parallel to BC. अब देखो AB एक लाइन है, BC क्या दूसरा लाइन होगा, क्योंकि B पॉइंट तो यहां पर कॉमन है ना, है कि नहीं। देखो ये तो A B तुमने बोल दिया है, तो BC के दूसरा लाइन होगा क्या, B पॉइंट तो यहां पर है तो BC यहां पर ही होगा। तो AB और BC पैरेलल मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर चल रहा है ना, क्योंकि देयर डायरेक्शन रेशियोस आर सेम और B पॉइंट कॉमन है। सो दैट मींस AB और BC पैरेलल तो है, सो AB एंड BC दोनों लाइन कोलिनियर है, because since B is common point, B is common point, right?
सो ए कोमा बी कोमा सी आर क्या होगा, कोलिनियर। ठीक है, इट इज ए प्रूफ। हो गया। हम्म, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बिठा दो उसको, पॉज करो, पॉज करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया गया है, देखो ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस दिया गया है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, दैट मींस एक ट्राइंगल है, यहां पर देखो एक ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल तो यहां से ही ड्रॉ कर सकते हैं, क्या उसको, अच्छा ट्राइंगल शेप्स, नहीं, ए, ठीक है, ए, here it is your triangle, okay। now this point, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,5,3,5,-4, इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है -1,1,2, -1,1,2, और ये जो पॉइंट है सी -5, -5, -2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ईच एंड एवरी साइड्स। As you all know, we can't find the direction cosines directly until and unless this angles are given. Okay, but here angles are not given. Okay, so if you want to find the direction cosines directly, then you need to have your angle of inclination with the coordinate axis. But here coordinate axis related concepts are not given. Only the 3 vertices are given and the triangle is given. Okay, so here I think for any particular straight line, if you know the direction ratios of each and every lines, then you can find the direction cosines of that particular line. ठीक है, तो यहाँ पर शायद मुझे डायरेक्शन रेशियोज पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लो शुरू करो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी का निकालो, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एसी का निकालो। ठीक है, ए बी डायरेक्शन रेशियो देखो, एक्स ये x1 y दो पॉइंट्स हैं। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, नो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो तो -1 -3, 1 -5 एंड 2 -4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -4 -4 एंड 6। ठीक है, ओके। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी मतलब ये दोनों पॉइंट ना, तो यहाँ पर क्या होगा, -5 +1, यहाँ पर क्या होगा, -5 -1, -2 -2। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसी ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, तो ये इसका क्या होगा, x2 - x1 है ना, दैट मींस -5 -3 -5 -5
-2 माइनस ऑफ -4, ठीक है। तो यहाँ पर -4 -6 -4, यहाँ पर -8 -10 और इधर माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 2। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट देखो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज, तीनों पॉइंट्स मिला के यहाँ पर मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया है फॉर ईच एंड एवरी लाइन। एबी का भी निकल गया, बीसी का भी निकल गया, एससी का भी निकल गया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज मिलने के बाद वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे लिखो डायरेक्शन, अब लिखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इसका एबी लाइन का। एबी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, ठीक है। अब फॉर्मूला तो जानते हैं, ए बाई रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर बी बाई रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर तो सी बाई रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब AB लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस तुम निकाल रहे हो, दैट मींस यू शुड कंसीडर द AB लाइन डायरेक्शन को रेशियोज, ठीक है। तो AB लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, दैट मींस -4 बाय रूट ओवर -4 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर एंड देन 6 स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पर -4 बाई -4 बाई रूट ओवर 16 प्लस 16 प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ पर -4 बाई इधर 32 और 36, दैट इज √68। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी -4 बाई √68 होगा, क्योंकि बी का वैल्यू भी दिए देखो -4 ही है, और 6 बाई √68। तो ये निकल गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC, BC का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC देखो ये क्या होगा, फॉर्मूला तो पता ही है। तो यहां पर लिखो A बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये है ए बी सी, BC लाइन का है कि नहीं, तो बिठाओ -4 बाई, ये भी तो मुझे सेम ही हो, मतलब √68 ही होगा शायद, देखो √68 ही होगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सेम ही है कि नहीं, थोड़ा आगे पीछे है। तो यहाँ पर क्या होगा -6 बाई √68, ये -4 बाई √68, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC, AC का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वही ये -8 बाई रूट ओवर -8 होल स्क्वायर -10 होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। तो इधर -10 बाई रूट -8 होल स्क्वायर -10 होल स्क्वायर और इधर 2 स्क्वायर, ठीक है। और इधर होगा 2 बाई, नीचे वाला पार्ट तो सेम ही होता है ना, तो इसके एक काम करते हैं 64 प्लस 100 प्लस 4, तो यहाँ पर आंसर -8 बाई
अच्छा यहाँ पर 164 और इधर 168, रूट 168 माइनस 10 बाई रूट 168, 2 बाई रूट 168। ये देखो तीनों लाइंस के, एक ट्राइंगल का तीनों लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस अलग अलग करके हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया है। सो नाउ यू कैन सी दिस एक्सरसाइज 11.1 is completed, 11.1 finished, okay। वेरी सिंपल। और लोग बोलते हैं ये सब टफ है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक दैट यू आर getting any kind of tough things in this three-dimensional geometry. If you are getting this stuff, that means if you are feeling that no, just I am feeling this stuff, no, I am feeling this stuff is very very tough, then you can just send me your queries, your doubts, and your questions in my comment sections or in my WhatsApp number. Okay, just my WhatsApp number is, you can just note it down, 8473955827. This is my WhatsApp number. You can send me your doubts, your questions. I will try to solve your problems, solve your queries, and this and your doubts in the next lecture. Okay, so thank you very much for joining my classes, and if you like my videos, then please subscribe, like, and share my channel. Thank you very much. Bye and Jai Hind.